All right, students. Now we will start with Unit 3. Again, I repeat, now we will start with Unit 3. हमने 2 units complete किए. Within first unit, we have discussed related to data, information, then what is knowledge, what is process, how we can convert data into information, right? Then we have seen what is information system, how it can be developed, if it is manual, if it is computer based, then what is to be considered, what are the components of computer based information system. And we have also seen that if we want to convert our manual system to computer based information system, तो हमें कौन सी चीज वहां पे consider करनी है, right? These were the things which we have covered within unit 1. In unit 2, we have seen that what is actual meaning of system in an organization. लेकिन अब सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी खुद की जो मैनुअल सिस्टम थी वो कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर रही है. सो दैट्स व्हाई वी आल्सो नीड टू कंसीडर इंफॉर्मेशन सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? आफ्टर दैट वी हैव सीन मैनी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द सिस्टम कि जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम सिस्टम बनाना चाहते हैं तो. We have also seen what is modeling system, what is model, which are the different types of model, right? And after that, we have also seen different types of system, right? Syllabus के हिसाब से जाए, then we have seen deterministic, probabilistic, open and closed system. But after that, we have also seen many different other types of system, right? कि जो हमें already वो particular unit के अंदर consider करनी थी. एंड बाय देन वी हैव सीन कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम टाइप्स, तो हम किस हिसाब से उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट? सो दिस वर द थिंग्स व्हिच वी हैव कवर्ड इन यूनिट 1 एंड यूनिट 2. नाउ विद इन यूनिट 3, that is introduction to various information system. Again I repeat, unit 3, that is introduction to various information systems. मतलब ये unit के अंदर हमें सारे different kinds of जो information systems है, right, वो हमें यहाँ पे study करना है, right? From that, we will start with the topic that is 3.1 business information systems. Again I repeat, from that unit 3, that is introduction to various information systems, we will start with topic 3.1, that is business information systems, right? All right. Now within this topic, that is 3.1 business information systems, first of all हमें ये देखना है कि कौन सी different types of information systems होती है कि जो हम business organizations के अंदर use कर सकते हैं. Again I repeat, इसके अंदर हमें वो types of information systems देखनी है कि जो हम business organizations के अंदर use कर सकते हैं. So first is ERP system, that is enterprise resource planning. TPS, transaction processing system. MIS, management information system. DSS, decision support system. GDSS, group decision support system. ESS, executive support system. Means we can say ये जो information systems है, that is from 1 to 6, right? ये जो सारी information systems है वो हमें detailed में देखनी है. अगर आपके पास सिलेबस है और अगर आप सिलेबस में देखोगे, then within this unit 3 हमें ये 6 different types of information system, obviously TPS is unit 4, लेकिन रिमेनिंग ये जो 5 इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ये यूनिट 3 के अंदर हमें डिटेल में देखनी है, राइट? बट अलोंग विद दैट there are some another system, that is e-commerce है, workflow system है, फिर दूसरी systems है, that is we can say this special purpose system है, artificial intelligence है, उसके अंदर हमें robotics, vision system, natural language processing, learning system, neural network expert system, and virtual reality. These are also different types of systems कि जो हमें उसके related सिर्फ brief देखना है, right? कि actually ये system क्या है, उतना हमें ये 3.1 टॉपिक के अंदर पढ़ना है. लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, from system 1, that is ERP,
टू सिस्टम 6 दैट इज ESS एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ये जो 6 डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है वो हमें बहुत ही डिटेल्ड मैनर के अंदर पढ़नी है। एंड उसमें से ये जो TPS है दैट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इट इज द यूनिट 4 ऑफ योर सिलेबस। सो बाकी की जो 5 है वो हम ये 3rd यूनिट के अंदर डिटेल में देखेंगे। बट बिफोर दैट हम ये ई-कॉमर्स से लेके ये जो वर्चुअल रियलिटी है वहां तक की सिस्टम पहले हम ब्रीफ में देखते हैं कि एक्चुअली ये सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ई-कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज ई-कॉमर्स। We can say that e-commerce is a modern business methodology, right? एक ऐसी मॉडर्न बिजनेस मेथोडोलॉजी है कि जिसके अंदर हम कस्टमर को बहुत ही अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं with reduced cost, and we can also speed up the flow of goods and information, right? Again I repeat, we can say कि ई-कॉमर्स एक ऐसी मॉडर्न बिजनेस मेथोडोलॉजी है कि जिसके अंदर हम कम प्राइस से कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एंड अलोंग विद दैट हम सारी चीजें स्पीड अप कर सकते हैं एंड हम जो कस्टमर सर्विस है वो भी इम्प्रूव्ड मैनर के अंदर कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। एंड ये ई-कॉमर्स के अंदर जो भी हम बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे, those business activities will be conducted by using some electronic data communication, right? यहाँ पे जैसे ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स का मीनिंग ही ये होता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जिसके अंदर सारी चीजें ऑन पेपर होती थी। ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब हमें बिजनेस तो करना है लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉनिकली हमें बिजनेस करना है, right? Means we are moving from traditional commerce to electronic commerce। और ऑब्वियसली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऊपर मूव करते हैं तो वहां पे जो भी डेटा कम्युनिकेशन होंगे दोज डेटा कम्युनिकेशन विल बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि जिसके अंदर कंप्यूटर्स है, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस है, नेटवर्क है एंड अदर वर्क प्रोसेसेस है वो इन्वॉल्व होंगे। और हम ई कॉमर्स का यूज क्यों करेंगे? ताकि हम रिड्यूस कॉस्ट के साथ एंड इन स्पीडी मैनर हम गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचा सके और कस्टमर को जो सर्विस क्वालिटी मिलेगी वो भी इम्प्रूव्ड सर्विस क्वालिटी होगी। एंड अलोंग विद दैट, ये तो हमने सिर्फ कस्टमर रिलेटेड बात की, लेकिन अगर हमें मैन्युफैक्चरर को, कस्टमर को, सप्लायर को, ये जो 3 डिफरेंट एंटिटीज है वो 3 डिफरेंट एंटिटीज के जितने भी टास्क है वो बहुत ही अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करने हैं तो भी हम वहां पे ई कॉमर्स का यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ सिस्टम इज वर्क फ्लो सिस्टम। वर्क फ्लो सिस्टम इट मीन्स कि हमारे बिजनेसेस की जो इंटरनल प्रोसेसेस है, राइट, उसके टास्क जो एक दूसरे के साथ रिलेट होके कैसे हम अच्छी तरह से मैनेज कर सके, दैट वी हैव टू डू विद इन वर्क फ्लो सिस्टम। मीन्स वी कैन से इट इज अ रूल बेस्ड सिस्टम। अगेन आई रिपीट, इट इज अ रूल बेस्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसके अंदर रूल्स पहले से डिफाइन किए गए होंगे कि ओके, अगर मैं मेरे बिजनेस के अंदर पेरोल सिस्टम की बात करती हूँ तो मेरे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को पर आवर वेजेस मिलेंगे, राइट? दूसरी कंपनी ऐसी भी होगी कि वो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो पेरोल सिस्टम होगी उसके अंदर फिक्स अमाउंट होगा कि ओके मंथली इतनी सैलरी पे करनी है टू द एम्प्लॉयज, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट इज रूल बेस्ड मैनेजमेंट। मतलब ये जो हम वर्कफ्लो सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट इज अ सॉफ्टवेयर बट इट इज रूल बेस्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कि जिसके अंदर हम जो भी इंटर रिलेटेड सेट ऑफ टास्क है हमारे बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर, राइट, वो बहुत ही अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर सके, उनका एग्जीक्यूशन मॉनिटर कर सके और हम सारी चीजें अच्छी तरह से डायरेक्ट भी कर सके, मीन्स मैनेज भी कर सके। मीन्स दैट इज द टर्म दैट इज वर्क फ्लो सिस्टम। हमारे बिजनेस प्रोसेसेस को अच्छी तरह से वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी फ्लो करने की जरूरत है वो हम ये वर्क फ्लो सिस्टम का यूज करके अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज बेस्ड ऑन
रूल्स। ऐसे ही फिलोसॉफी के ऊपर वर्क नहीं करता है, उसके अंदर खुद के रूल्स होंगे जो हम ये वर्कफ्लो सिस्टम के अंदर डिफाइन करेंगे। Now, what is the primary purpose of this workflow system? Primary purpose of this workflow system is to track and route the documents to improve business processes. Again, I repeat, workflow system का primary purpose क्या होगा कि वो एम्प्लॉय को जो भी डॉक्यूमेंट्स फ्लो करने हैं, दैट इज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू बहुत ही फास्टर मैनर के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं एंड अलोंग विद दैट हम उसे ट्रैक भी कर सकते हैं कि अभी ये डॉक्यूमेंट कौन से डिपार्टमेंट में है। बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो तो बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड इफ ईच एंड एवरीथिंग इज मेंटेन ऑन पेपर, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो पेपर मिसप्लेस भी हो सकता है, राइट? और जो डिपार्टमेंट तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं भी पहुंचता है। सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को राउट करने के लिए, दैट इज उन्हें सेंड करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, राइट, ये हमें वर्कफ्लो प्रोसेस हमें हेल्प करेगी और हमारे बिजनेस को इम्प्रूव करेगी। And the most important thing, this workflow system can handle multiple users and distribution of business processes. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक या दो या फिर एक डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स ही मैनेज कर सकती है। No, it can manage multiple users and the distributions of the documents of those users के जो business processes को improve करने में हमें काम लगेगा, right? That is workflow system. Now another type of system is special purpose system. Special purpose system is divided into two parts, that is artificial intelligence and virtual reality, जो already हमने वहां पे first slide के ऊपर हमने देखा, right? That this business information system के अंदर special purpose system भी है and it is divided into two parts, that is artificial system and virtual reality. Now, first thing is, what is artificial intelligence? It is also known as AI, right? Again, I repeat, it is also known as AI, that is artificial intelligence. We can say कि computer world के अंदर AI is one field कि जिसके अंदर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग की, राइट, वो हम कंप्यूटर को देते हैं। अगेन आई रिपीट, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इंटेलिजेंसी फीचर है या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, राइट, वही कैरेक्टरिस्टिक हम कंप्यूटर को जब हम देते हैं देन इट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिकॉज मशीन के अंदर ऐसा कोई भी इंटेलिजेंसी का फीचर खुद का नहीं होता है, हम उसे उस हिसाब से बनाते हैं। That's why it is known as artificial intelligence, right? So we can say that AI is a field in which computer system takes and characteristic of human intelligence, right? और obviously computer system ये खुद तो नहीं करेगी, हमें उसे वैसे बनाना पड़ेगा, right? That's why it is known as artificial intelligence. There are many different types of artificial intelligence system. From that first is robotics. रोबोटिक्स मतलब ऐसा कंप्यूटर डिवाइस या फिर ऐसा मैकेनिकल डिवाइस के जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने में काम लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बहुत बड़ी बड़ी कार के अंदर जो बहुत बड़ी मशीनरीज होती है उसे एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पहुंचाना है, या फिर हमें कार के अंदर इंजन फिट करना है, एंड इवन इन दिस करंट एरा, राइट स्टूडेंट्स, देयर इज अ मेडिकल रोबोट ऑल्सो, राइट, कि जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए भी काम लगते हैं। Again, I repeat, in this current era, that is, we are living in the digital age. और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि सिर्फ कोई बड़ी चीज एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पहुंचाने के अलावा भी रोबोटिक्स मेडिकल फील्ड में भी काम करते हैं। मतलब अगर हम ऑपरेशन थिएटर की बात करें तो वहां पे भी रोबोट्स हेल्प करते हैं टू डू दी ऑपरेशन, राइट? सो दैट इज नोन एज रोबोटिक्स।
एंड ऑब्वियसली इट विल बी अ मैकेनिकल डिवाइस और अ कंप्यूटर डिवाइस, लेकिन उसके अंदर हमने उस हिसाब से प्रोग्रामिंग किया होगा ताकि वो इस हिसाब से वर्क कर सके, राइट। Another type of system is vision system, राइट। विजन सिस्टम का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये सिस्टम के अंदर ऐसे हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड किए जाते हैं कि वो कंप्यूटर को ये कैपेबिलिटी दे कि वो जो विजुअल इमेजेस है, पिक्चर्स है, उन्हें कैप्चर करके, स्टोर करके मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, राइट। अगेन आई रिपीट, विजन सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम कि जिसके अंदर हम ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंक्लूड कर सकते हैं कि वो कंप्यूटर को ऐसे बनाए कि वो जो भी इमेजेस है, पिक्चर्स है, उसे कैप्चर करे, स्टोर करे और उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट एनालिसिस सिस्टम, राइट। अगर हमें पीपल को आइडेंटिफाई करना है तो हम फिंगरप्रिंट के ऊपर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अगर दूसरे भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स, फेशियल फीचर्स होते हैं कि जिसके ऊपर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रेटिना होता है, राइट, उसके ऊपर से भी हम पीपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि ऐसी सिस्टम के इमेजेस को कैप्चर करके उसके ऊपर एनालिसिस करके उसे मैनिपुलेट करके, राइट, कोई काम लग सके, those type of system are known as vision system, right? Okay. Another is natural language processing system. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एज द नेम सेज, कि जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, हम कंप्यूटर फील्ड की लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीबी लैंग्वेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट C++ लैंग्वेज, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल लैंग्वेज दैट इज यूज बाय द ह्यूमन बींग्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी यूज करते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं, गुजराती यूज करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेजेस है, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम कि जो कंप्यूटर को ये सारी नेचुरल लैंग्वेजेस को समझने में काम लगती है। अगर कंप्यूटर को मैं ऐसा बोलती हूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करो, मैं ऐसा कमांड देती हूँ कंप्यूटर को, तो वो उसे ऑटोमेटिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन करना है। सो दिस इज द वे कि कंप्यूटर हमारी ह्यूमन बीइंग की जो नेचुरल लैंग्वेजेस है उसके कमांड समझेगा और उसके ऊपर वो परफॉर्म करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करेगा, हम जो वर्ड्स बोलेंगे वो कंप्यूटर के अंदर मैच करेगा, राइट, और उस हिसाब से वो कंप्यूटर को कमांड देगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस हिसाब से भी यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है विदाउट टाइपिंग एनी कमांड, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है विदाउट टाइपिंग एनी कमांड, तो उस जगह पे भी हम ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूं कि ओपन द फाइल ABC इन D ड्राइव, तो वो क्या करेगा, D ड्राइव के अंदर जो ABC नाम की फाइल है वो ओपन करके हमें दे देगा, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अनदर इज लर्निंग सिस्टम। अगेन आई रिपीट, अनदर इज लर्निंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस लर्निंग सिस्टम? वी कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कि वो क्या अलाउ करेगा, वो जो भी फीडबैक उसे मिलेंगे उसके हिसाब से वो खुद को चेंज करेगा। इट विल रिएक्ट ऑन द सिचुएशन बेस्ड ऑन द फीडबैक that it's received. Again, I repeat, it will react on the situation based on the feedback it receives. अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो रावण जो मूवी था उसके अंदर जो वो रावण कैरेक्टर बनाया था, राइट, इट वाज अ कंप्यूटराइज कैरेक्टर, राइट। और वो जो कंप्यूटराइज कैरेक्टर था उसके अंदर इस हिसाब से प्रोग्रामिंग किया गया था कि वो खुद कुछ सीख सके। अगेन आई रिपीट, वो कंप्यूटर प्रोग्राम विच वाज रावण, वो इस हिसाब से डिजाइन किया था कि वो खुद कुछ सीख सके। जैसे वो एक
फेज से दूसरे फेज के ऊपर मूव करता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज के ऊपर मूव करता है, तो वो खुद एक नया मूव सीखेगा, राइट? दिस इज लर्निंग सिस्टम, कि खुद कुछ सीखता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा है दैट इट गिव्स द कंप्यूटर एन एबिलिटी टू लर्न, अपनी खुद की पास्ट मिस्टेक्स के ऊपर से, एक्सपीरियंस के ऊपर से खुद कुछ सीख सके। That type of system, for example, computer games, that type of systems are known as learning systems, right? Okay. Another is neural network. न्यूरल नेटवर्क मतलब क्या, कि हम कंप्यूटर को इस हिसाब से स्टिम्युलेट करेंगे कि वो ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करे। अगेन आई रिपीट, अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन सिम्युलेट द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कुछ बोलती हूँ स्टूडेंट्स, आपको कोई प्रॉब्लम देती हूँ, तो आपका ब्रेन वर्क होना स्टार्ट करेगा कि ओके ये प्रॉब्लम दिया है, उसके अंदर ये सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। इट मीन्स हमारा ब्रेन ये सारी चीजों के ऊपर एनालिसिस करता है। पहले तो वो ये रिकॉग्नाइज करेगा कि ये जो प्रॉब्लम डेफिनेशन मुझे मिली है उसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद वो सोचेगा कि ओके ये प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर से मैं कैसे सोल्यूशन ला सकूं, राइट? तो वो उसके ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट करेगा। वो खुद ही अपने ब्रेन खुद पैटर्न्स बनाएगा कि ओके ये एक सोल्यूशन हो सकता है, ये दूसरा सोल्यूशन हो सकता है, ये थर्ड सोल्यूशन हो सकता है। लाइकवाइज अगर हम ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बनाए कि ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करे, राइट, देन वी कैन से इट इज न्यूरल नेटवर्क। एंड उसके अंदर हम डिजीज डायग्नोस्टिक सिस्टम भी एज एन एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि ओके मैं डॉक्टर को जाके बोलती हूँ कि मुझे बैक पेन हो रहा है, मुझे फीवर है, मुझे हेडेक हो रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि आपको मलेरिया है। क्यों? बिकॉज बैक पेन इज द सिम्टम ऑफ मलेरिया, ऐसा वो एज्यूम करते हैं। सो दिस इज द थिंग, सिम्टम्स के ऊपर से डॉक्टर ने ऑटोमेटिक ये डिजीज डायग्नोस्टिक कर दिया। लेकिन ये अपने आप तो नहीं हुआ, डॉक्टर के ब्रेन ने वर्क करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे पेशेंट सिम्टम्स बताते जाते हैं, डॉक्टर का ब्रेन वर्क करता है और उसके हिसाब से वो डिटरमाइन करके देता है कि ओके शायद आपको मलेरिया हुआ लगता है, राइट? सो दिस इज द वे कि हम कंप्यूटर को भी इस हिसाब से ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से वर्किंग करने के लिए बना सकते हैं। अनदर इज एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम मतलब हम कंप्यूटर को ऐसी एबिलिटी देंगे कि जो एक्सपर्ट की तरह वर्क करे, राइट? कि जो हमें सजेशन दे, राइट, इन सम पर्टिकुलर फील्ड। अगेन आई रिपीट, एक्सपर्ट सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम की जो एक्सपर्ट की तरह वर्क करे, राइट? वो हमें पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सजेशंस दे। ऑब्वियसली उसके रिलेटेड जो भी डेटा है, रूल्स है, प्रोसीजर्स है, रिलेशनशिप्स है, वो सारी हमें फॉलो करनी पड़ेगी और उसके रिलेटेड हमें एक डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा, विच विल बी नोन एज अ नॉलेज बेस, राइट? मतलब एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर हमें एक ऐसा नॉलेज बेस बनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर हम सारे डेटा स्टोर करेंगे, उसके ऊपर जो रूल्स हम अप्लाई करना चाहते हैं, कंस्ट्रेंट्स बनाना चाहते हैं, वो हम रखेंगे, डेटा के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से उसके ऊपर से इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके, राइट? वो सारी चीजें हम नॉलेज बेस के अंदर प्रोवाइड करेंगे। बट वो नॉलेज बेस के अंदर जो हम स्टोर करते हैं, राइट, उसके ऊपर से ये एक्सपर्ट सिस्टम लाइक एन एक्सपर्ट हमें एडवाइस प्रोवाइड कर सकता है, सजेशन प्रोवाइड कर सकता है, राइट? एंड ऑब्वियसली एक्सपर्ट सिस्टम कोई पर्टिकुलर फील्ड के लिए हम बनाएंगे, राइट? बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि एक ही सिस्टम सारी फील्ड के रिलेटेड एक्सपर्टीज मतलब हमें सजेशंस दे। तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन सम पर्टिकुलर फील्ड, लेकिन हम ऐसी सिस्टम भी बना सकते हैं, राइट? एंड द लास्ट इज दैट इज वर्चुअल रियलिटी, राइट? ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपको पता हो तो बहुत सारी जगहों पे ऊपर प्ले जोन बनाए गए हैं, राइट? उसके अंदर क्या है, जब भी हम वो प्ले जोन के अंदर एंटर करते हैं तो हमें आइस के ऊपर एक डिवाइस पहनाया जाता है,
राइट वो डिवाइस के अंदर उस हिसाब से ग्राफिक्स डिस्प्ले होते हैं, उस हिसाब से इमेजेस डिस्प्ले होती है, मोर प्रिसाइज उस डिवाइस में उस हिसाब से वीडियोस चलते हैं कि हमें ऐसा लगे कि एक्चुअली हमारे सामने ही ये चीज है। राइट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा वीडियो गेम है कि जिसके अंदर वो डिवाइस आपके आइस के ऊपर पहनाया गया है, राइट टू माउंटेन्स है, टू माउंटेन्स के बीच में एक रोप बनाई गई है या फिर एक लॉग रखा गया है और आपको ये माउंटेन को क्रॉस करना है, राइट मतलब एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के ऊपर जाना है बाय वॉकिंग ऑन दैट रोप या फिर बाय वॉकिंग ऑन दैट लॉग। सो दिस इज हाउ कि आप एक्चुअली दो माउंटेन के बीच में नहीं खड़े हो, आपको एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के ऊपर नहीं जाना है, बट वो आपकी आंखों के सामने ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, राइट ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है कि आपको ऐसा लगे कि ओके ये मेरे सामने ही है ऐसी चीज। सो दैट इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। Again I repeat, that is known as virtual reality system कि उसके अंदर सारी चीजें आर्टिफिशियल होती है लेकिन इस हिसाब से वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है विच इज जनरेटेड बाय कंप्यूटर कि हमें ऐसा लगे कि वो हमारे सामने ही है, वो हमारी आंखों के सामने ही ऐसी सिचुएशन है, राइट That's why we can say that it enables user to move and react in a computer simulated environment. मतलब ऐसा कोई एनवायरमेंट एक्चुअली नहीं है लेकिन कंप्यूटर का यूज करके हम ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, राइट और ऐसा सिमुलेशन बनाने के लिए हमारे पास स्पेशल इंटरफेस डिवाइसेस होने चाहिए कि जिसका यूज करके हम साउंड है, व्यू है, इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस है वो हम सिमुलेट कर सके, राइट फॉर एग्जाम्पल आप आई थिंक वीआर में है या फिर ऐसी एक जगह पे 7D एक जगह है कि जिसके अंदर 7 डायमेंशंस के हिसाब से वहां पे ये वर्चुअल रियलिटी क्रिएट किया जाता है, साउंड है, स्मेल है, फिर मोशन है, राइट ऐसी 7 डिफरेंट थिंग्स कंसिडर करके वहां पे वर्चुअल रियलिटी क्रिएट किया जाता है, राइट सो दिस इज व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी के रियल वर्ल्ड वो नहीं है, इट इज जस्ट अ कंप्यूटर सिमुलेटेड एनवायरमेंट, इट इज जस्ट एन इल्यूजन विच इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ computer system and that is known as virtual reality, right? So students we can say कि ये devices क्या करेंगे, ये devices speech है, movements है, वो सारी चीजों को record करके, right वो simulation program को send करेंगे, right और उसके ऊपर से वो virtual objects को manipulate कर सके ताकि वो real objects की तरह लगे, right? So this is the significance of the devices that are used in virtual reality system, right? Okay. So students, this is all about business information system, right? उसके अंदर हमने कौन कौन से सिस्टम देखी, दैट इज वर्चुअल रियलिटी, एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क, लर्निंग सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, विजन सिस्टम, स्पेशल पर्पस सिस्टम के अंदर ये सारी सिस्टम्स हमने देखी थी अलॉन्ग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. And we have also seen two another system that is workflow system and e-commerce, that is electronic commerce, right? And remaining जो 6 systems है, right, that is from ERP to ESS, वो तो हम डिटेल में देखेंगे, right? So students, this is all about today's lecture, right? अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे.